یمن یہی اصلی عربوں کا ملک ہے، کیونکہ عربی نسل یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس ملک کو آپ نے ہمیشہ خانہ جنگی میں دیکھا ہوگا، لیکن یہاں قدرت کا ایک ایسا حسن چھپا ہوا ہے جو آپ کی روح کو ہلا دے گا۔ یہاں کی عام سی لڑکی بھی شہزادی سے کم نہیں لگتی۔ یہ ملک پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج یہاں کا ماحول، عیاشی دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ملک میں تیل کے خزانے ہیں، لیکن کیوں یہ ملک عرب کا کمزور، غریب اور مسکین ترین ملک ہے؟ یہاں کے لوگ آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکیاں باہر کے مردوں سے زیادہ یاری کیوں لگاتی ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر اس ڈاکومنٹری میں آپ کو یمن کی سرزمین کے بارے میں ایسے انفارمیشن ملے گی جو میری جان آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، یمن جسے عربی میں المن بھی کہا جاتا ہے، جبکہ رومن میں اسے علیمہ اور یمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مغربی ایشیا ایک نہایت ہی حسین اور تاریخی عرب ممالک ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوسرے عرب ممالک کی طرح یہاں کوئی بادشاہی نظام قائم نہیں، بلکہ یمن ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوری حکومت موجود ہے۔ یہ گرم عرب ملک اپنی سردوں میں بڑا منفرد ہے۔ شمال میں اس کی حدیں سعودی عرب سے ملتی ہیں، شمال مشرق میں عمان واقع ہے، جبکہ جنوب میں اس کا دامن وسیع ہے، بحر ہند سے جڑتا ہے۔ صرف یہی نہیں، یمن کی سمندری حدود ایریٹریا، جبوتی، صومالیہ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں، جو اس کی جغرافیائی اہمیت کو ایک اور بڑھا دیتی ہیں۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یمن عرب دنیا کا سب سے غریب ترین اسلامی ملک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں اس وقت تقریباً 3,44,04,982 افراد آباد ہیں، لیکن یہاں بسنے والے سب لوگ مقامی نہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق کل آبادی کا 92.8% حصہ مقامی عرب لوگوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 3.7% لوگ صومالی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 30.5% مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ یمن اپنی آبادی کے اعتبار سے دنیا کے ممالک میں سے 48ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، اور اگر بات کریں رقبے کی تو یہ ملک تقریباً 5,07,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یمن رقبے کے حساب سے دنیا کا 49واں بڑا ملک قرار پاتا ہے۔ ناظرین، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یمن آج 2025 میں بھی اپنی دیسی اور سادہ طرز زندگی پر قائم ہے۔ یہاں آپ کو وہ بلند و بالا لگژری عمارتیں یا جدید طرز کے حیات نہیں ملیں گے جو دیگر ہمسایہ ممالک میں عام ہے، بلکہ یہاں کے لوگ آج بھی سادہ مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے چہروں پر خوشی، لیکن ان کی زندگی میں وہ مصنوعی چمک دمک نہیں جو آج ہم اکثر بڑے ممالک میں دیکھتے ہیں۔ یمن کا دارالحکومت ہے صنعا، ایک ایسا شہر جو کہ نہ صرف ملک کا سب سے بڑا اور سب سے قدیم اور تاریخی شہر ہے، یہی وہ شہر ہے جو یمن کا ثقافتی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی دل کہلاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تاریخ کے اوراق کے مطابق یہ شہر آج سے تقریباً 2005 سال پہلے آباد ہوا۔ روایت تو یہاں تک کہتی ہیں کہ عرب قوم کا ابتدا بھی اسی سرزمین سے ہوئی تھی، اور پھر یہ قوم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے دیگر علاقوں میں جا بسے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں۔ آپ نے دنیا میں کئی طرح کے نشے دیکھے ہوں گے یا ان کا ذکر سنا ہوگا، شراب، وائن، سگریٹ، گٹکا، گانجا، چرس وغیرہ، مگر یمن کی ایک نت نئی داستان ہے۔ یہاں کے لوگ ایک خاص پتے کا نشہ کرتے ہیں جسے قات کہا جاتا ہے۔ قات کے پتے یہاں کی روزمرہ زندگی میں اس قدر گھل مل گئے ہیں کہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین، نوجوان مرد، نوجوان لڑکیاں، حتیٰ کہ بچے بھی اس باتوں کو اپنی محفلوں کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو معاشرتی رنگ ہو یا حصہ بن چکی ہے۔ صنعا کی اصل پہچان اس کی خوبصورت عمارتیں اور منفرد آرکیٹیکچر ہے، جو پورے عرب کی ثقافت سے بالکل الگ اور دلکش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر دیکھنے والے ہر سیاح کو ایک الگ دنیا کا احساس دلاتا ہے۔
अब अगर हम यमन के लोगों की तर्ज ज़िंदगी देखें तो ये दुबई, कतर, कुवैत या सऊदी अरब के अरबों की तरह अयाश नहीं है। यही वजह है कि अक्सर यमन लोग अयाशी करना चाहते हैं तो अमूमन दूसरे अरब ममालिक का रुख करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यमन में शराब बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद सालाना लाखों लीटर शराब चोरी छुपे तैयार भी की जाती है और गैर कानूनी तरीकों से मुल्क में लाई भी जाती है। यमन में डांसिंग बाज ना होने के बराबर है, मगर यमन नौजवान अपनी खुशियों का सामान खुद पैदा करते हैं। बज़ाहिर तो शहरों में रात का माहौल पुरसुकून दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे कई खुफिया महफिलें और प्राइवेट पार्टीज मुनक्कद की जाती हैं, जहां नौजवान अपनी ज़िंदगी के अलग रंग जीते हैं। ख़ास तौर पर बड़े शहरों में अमीर तबके के लोग पोश इलाकों में ऐसी महफिलें जमाते हैं जिनमें मौसीकी, रक्स और शराब नोशी खुफिया तौर पर की जाती है। यमन में सरेआम इन बातों पर सख्त पाबंदी है, लेकिन खुफिया तौर पर ये कुछ लोग गलत और गैर इखलाकी सरगर्मियों में भी मुलव्विस हैं। ऐसे में जिस्म फरोशी और नाजायज़ ताल्लुकात जैसे के मसाइल भी सामने आते हैं, जो अमूमन गुर्बत खाना, जंगी और कमज़ोर माशी हालात के नतीजे में परवान चढ़ते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लड़कियां गुर्बत के हाथों मजबूर होकर ऐसे धंधों में शामिल हो जाती हैं, जबकि नौजवान लड़के प्राइवेट महफिलों में भी गैर इखलाकी ताल्लुकात बनाते हैं। यही वो पहलू है जो दुनिया को खुलकर दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, जहाँ एक नायाब दरख्त देखा जाता है जिसे कहते हैं ड्रैगन बिल्ड ट्राई, इस दरख्त के सबसे हैरतकुन बात यह है कि जब इसे काटा जाता है तो इसके लकड़ी से बिल्कुल खून की तरह सुर्ख मादा बहता है। इस दरख्त की शक्ल छतरी जैसी होती है और ये अपने इनफरादियत के पोज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके पत्तों और लकड़ी से ख़ास किस्म की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और इसके रस के बहुत ऐसी बीमारियों का इलाज में इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें आम हालात में लाइलाज समझा जाता है। यमन की लड़कियां अपनी कुदरती खूबसूरती, मासूमियत और सादगी के बायस खास पहचान रखती हैं। इनकी साफ रंगत, बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और मशरकी अंदाज इनके हुस्न को और भी नुमाया कर देते हैं। यमनी लड़कियां मिजाज के लिहाज से अमूमन शर्मीली, वफादार और घरेलू समझी जाती हैं, लेकिन साथ ही ये मोहब्बत में मुखलिस और जज्बाती भी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यमन के अक्सर लड़कों को गैर मुल्की लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये वो समझती है कि गैर मुल्की लड़के ज़्यादा आज़ाद ख्याल, खुले दिल वाले और माली तौर पर मजबूत होते हैं। दूसरा, ये गैर मुल्कियों के साथ ताल्लुक़ इनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल और पुरकशिश ज़िंदगी की उम्मीद भी होता है। इसलिए अक्सर यमनी लड़कियाँ गैर मुल्की मर्दों की तरफ ज़्यादा माइल दिखाई देती है। यहाँ का मशहूर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ द यमन तारीख का एक ऐसा ख़जाना है जहाँ यमन की कुदरती विरासत को महफूज किया गया है और यही वो वजह है कि दुनिया भर से सियाह इसे देखने आते हैं। इस शहर में मौजूद गेटवे ऑफ यमन और असाल मस्जिद सियाहत के ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखे बगैर कोई भी सियाह वापस नहीं जाता। ये दोनों यादगारें न सिर्फ यमन के विरसे की अलामत हैं, बल्कि आज भी अपनी शान और असमत को चमक दिखाती हैं। अगर अदाद शुमार पर नज़र डालें तो यमन का कुल रकबा 256 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 25,45,000 अफराद पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीखी शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी करार दिया गया है, जिससे इसकी आलमी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। यमन की अक्सरियत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन यहाँ की शादियाँ इसके बरक्स नहायत ही दिलचस्प और मुनफरद समझी जाती हैं। दूसरे अरब ममालिक के मुकाबले में यमन शादियों की अपनी एक अलग शान है। यहाँ ख़ास तौर पर मर्द हजरात शादी के मौके पर अपनी रवायती पहचान के साथ नमूदार होते हैं। वो सर पर रुमाल रखते हैं, जिस्म पर रवायती कंदोला ओढ़ते हैं और वो पेट के ऊपर एक ख़ास किस्म का खंजर बांधते हैं।
जैसे इज्जत और रवायत की अलामत समझा जाता है। यमनी शादियाँ सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं होती, यहाँ का माहौल भी अपनी मिसाल आप है। शादियों में अक्सर फायरिंग की जाती है और खुशी के मौके पर पैसे भी खुले दिल से लुटाया जाता है। दूसरी जानिब इंतहाई कीमती और खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करती हैं। दुल्हन समेत तमाम ख़वातीन निहायत ही शानदार अंदाज में तैयार होती हैं। इनका सबसे नुमाया ज़ेवर सोना है जो बेदरीग इस्तेमाल करती हैं। यही नहीं, खानों के मामलों में भी यमन किसी से पीछे नहीं। यहाँ की शादियाँ मंदी, मदफून और गाय के गोश्त से तैयार करदा देसी पकवान के बगैर अधूरी सजी रहती हैं। शादियों में औरतें और मर्द रवायती रक्स करते हैं और भरपूर अंदाज में खुशी मनाते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि यमन शादियां सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि तकरीबन 21 से 25 दिन तक चलती हैं और हर दिन एक नए जोश और रंग में डूबा हुआ होता है। यहाँ की औरतें अमूमन निकाब पहनती हैं और अबाया इनके लिबास का लाजमी हिस्सा होता है। यमन में औरतों की इज्जत को बहुत अहमियत दी जाती है, इसीलिए किसी भी औरत की तस्वीर बगैर इजाज़त लेना बिल्कुल ममनू है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाए, इसे सीधा जेल की सैर करनी पड़ती है। नाज़रीन, यमन में चोरी चकारी के वाक़यात भी आम हैं, लेकिन पकड़े जाने पर यहाँ की हुकूमत सख्त एक्शन लेती है। चोरी को न सिर्फ सख्त सज़ा दी जाती है बल्कि इन पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाता है। अब बात करते हैं यमन के एक और तारीखी और शानदार शहर की, अदन। ये शहर यमन का पहला दारुल हुकूमत था और अपनी खूबसूरती और जदीद तर्ज तामीर के बायस आज भी दुनिया भर में मशहूर है। अदन बहरे अरब के किनारे आबाद है और इसमें बेशुमार ऐसे दिलकश मकामात मौजूद हैं जिन्हें देखना हर सियाह का ख्वाब होता है। यहाँ मौजूद यमन की सबसे बड़ी बंदरगाह, जिसे दुनिया अदब कोर्ट के नाम से जानती है। दिलचस्प बात यह है कि ये शहर 7वीं सदी ईस्वी में आबाद हुआ और आज भी अपनी तारीखी हैसियत बरकरार रखे हुए है। अगर आदाद शुमार देखें तो अदन का कुल रकबा तकरीबन 760 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 10,80,000 अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, यमन की करेंसी है यमनी रियाल, लेकिन ये करेंसी अरब दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी मानी जाती है। एक यमनी रियाल की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1 रुपया 19 पैसे में और इंडियन करेंसी में सिर्फ 37 पैसे के बराबर है। यही वजह है कि यमन को अरब दुनिया का इंतहाई गरीब मुल्क कहा जाता है। यमन की साहिल की बात पर यमन के समंदर, खास तौर पर समुद्री रस्तों में एक यही वो समुद्री गुजरगाह है जिसके ज़रिए बड़े जहाज़, बड़ी मईशत, हत्ता कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक तिजारत के लिए मालो असबाब रिपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इस रास्ते की आलमी ताकतें इस पर गहरी नज़र रखती हैं और नावाकिफ बात नहीं, अगर यमन कोई सियासी फैसला करे तो ये रास्ता इलाकाई और आलमी तिजारत पर असर अंदाज हो सकते हैं। मगर हकीकत यह है कि इन बैन अक़वामी ताल्लुकात और असरों की वजह से ये फ़ैसला आसानी से नहीं होते। दुनिया के कई ममालिक, बिलखसूस बड़ी ताकतों का इस मामले में हाथ और दिलचस्पी है। यमन के शुमाली इलाके कुदरती हुस्न का ऐसा शाहकार भी कहते हैं। यहाँ की हवा में ज़िंदगी ही कुछ और है। ये इलाके ना दिलकश हैं बल्कि निस्बतन ठंडे भी हो गए हैं। सर्दियों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी तक देखने को मिलती है। शादा वादियों में आँख खिली हो जाती है। यमन के कुदरती ख़जानों में से एक अहम तख्ता तेल जो यहाँ सन 1987 में दरिया के ओके जा रही थी और ये मुल्क दुगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन अफसोस के ऐसा ना हुआ। जिस तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी शुमाली और जनूबी यमन की आपस में लड़ाई। इन लड़ाइयों ने हज़ारों जानें निगल लीं और मुल्क को कमज़ोरी से कमज़ोर कर दिया। दरअसल यमन की ये तकसीम महज जोग्राफियाई नहीं बल्कि मजहबी बुनियादों पर। शुमाली यमन में ज़्यादातर शिया कम्युनिटी आबाद है, जबकि जनूबी हिस्से में सुन्नी कम्युनिटी की अक्सरियत है। दोनों ग्रोह सदियों से एक दूसरे के साथ तनाज़े में उलझे हुए हैं और यही खाना जंगी आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। इसी खाना जंगी का नतीजा यमन आज भी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। यमनी अवाम की एक बड़ी तादाद रोज़गार के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करती है।
تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ موجودہ وقت میں یمن کی معیشت نہایت ہی کمزور اور نازک حالت اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ بیرونی طاقتوں کی مداخلت شمالی یمن کے شیعہ کمیونٹی کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ یمن کے سنی کمیونٹی کے پیچھے سعودی عرب۔ یہی بیرونی اثرات یمن کے اندرونی جھگڑوں کو مزید ہوا دیتے ہیں اور اسی غریب ملک کے لیے امن اور ترقی محض ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ اگر ہم یمن کی معاشی صورتحال پر نظر ڈالیں تو اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی تقریباً $99.36 فی کس ہے، تو یہ محض $2503۔ یہی وجہ ہے کہ مضبوط معیشت رکھنے والا ممالک بھی یمن دنیا کے ایک 90 نمبر پر، جبکہ آمدنی کے لحاظ سے اس کا نمبر اور بھی نیچے گیا ہے، 180واں۔ یمن کا کالنگ کوڈ +9067 ہے اور اس کا انٹرنیٹ ڈومین نیم کے یہاں کے ڈرائیونگ رائٹ سائٹ پر کی جاتی ہے۔ یمن کی سڑکیں کہیں کھلی اور کہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں تو کہیں بالکل خستہ حال، ایک طرف ترقی کا جھلک اور دوسری طرف غربت کی کڑوی۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں، نظام موجود ہے لیکن نہایت ہی اسکول اور تعلیمی ادارے وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ اسی طرح طبی شعبے وہ نہایت ہی مضبوط ہیں، یہاں اچھے اور ماہر ڈاکٹر آپ کو شاید ہی کہیں ملیں۔ اسی وجہ سے یمنی عوام اپنے علاج کے لیے عموماً سعودی عرب، دبئی، عمان کا رخ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔